Hello students, the next problem before you is again a circle. C is a circle. Integrate z bar dz. Z bar is conjugate of z. Where C is upper half of circle whose radius is 1. Now, if radius is 1, it is also known as unit circle. So they may sometimes call it unit circle. Again, same thing, you have to take r equal to 1. Let us draw the diagram for it, my friends. एक सर्कल ड्रॉ कर दे, सेंटर इक्वल टू 0 0 ऑफ कोर्स. ये रेडियस r इज 1 और यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है और उसको अपर हाफ है, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे. यहाँ थीटा 0 है और थीटा इक्वल टू पाई है, बराबर 0 to पाई. सो लेट सॉल्व लाइक दिस. लेट z इज r e raised to I theta. ये हमारा स्टैंडर्ड है सर्कल के लिए. बट r इक्वल टू 1, रेडियस इक्वल टू 1 दिए, सिस्टम से जाएंगे. r 2 है तो 2 लिखो, तो z हो जाएगा 1 into e raised to I theta. यानी z will become e raised to I theta. अब z e raised to I theta है तो z बार माने कॉन्जुगेट ऑफ z है. कौन है बच्चों? कॉन्जुगेट ऑफ z. क्या होगा मालूम है? कॉन्जुगेट ऑफ z होगा e raised to minus I theta. अच्छा गया, ये e raised to I theta है तो z बार ऑलवेज क्या होगा? e raised to minus I theta. उसके बाद z is e raised to I theta, तो उसकी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि हमको z बार फाइंड किया. अब dz के लिए d of z equal to d of e raised to I theta. What is d of z equal to? d of e raised to x is e raised to x. d of e raised to I theta is e raised to I theta into derivative of I theta. Because थीटा से अलग है. अगर e raised to theta होता तो डेरिवेटिव of e raised to theta e raised to theta आता. But e raised to I theta is derivative of e raised to I theta is e raised to I theta into derivative of I theta. So dz is equal to e raised to I theta. Derivative of I theta, I is a constant by derivative of theta. So what is dz? dz is I e raised to I theta into d theta. मुझे बच्चों dz भी मिल गया. तो अपना इंटीग्रेशन को I बुलाएंगे, इसको I बुलाएंगे. So I becomes इंटीग्रेशन थीटा में सब जाएगा तो 0 to पाई होगा. थीटा क्या होगा? 0 to पाई. z बार क्या है? e raised to minus I theta. एंड dz क्या है? I into e raised to I theta into d theta. अंडरस्टूड? अब e raised to minus I theta कैंसिल हो जाएगा. नहीं समझे तो I कॉमन आएगा 0 to पाई. e raised to I theta and e raised to minus I theta बेस e सेम है तो इंडाइसेस ऐड होंगे. माइनस I theta प्लस I theta और d theta. अंडरस्टूड? व्हेन बेस इज सेम इंडाइसेस ऐड होंगे. प्लस I theta माइनस I theta कैंसिल. सो I into इंटीग्रेशन 0 to पाई थीटा इक्वल टू 0 to पाई e raised to 0 d theta. It is I into 0 to pi. e raised to 0 is 1 into d theta. That is I into integration 1 d theta is theta 0 to pi. That is I into, अभी थीटा को अपर लिमिट पाई पुट करो, माइनस थीटा को क्या पुट करो? 0 पुट करो. सो I into पाई, so आंसर आएगा पाई I. Please observe carefully. Understood? Important है ये, आराम से ऑब्जर्व करो. 4 मिनट पे खत्म. ठीक है? Now students, the next problem before you is find integration log z dz, contour integral. C means path of integration है. बोलते हैं ना पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, वैसा ही C दिया नहीं है. क्या दिया है आगे? इंटीग्रेशन log z करो where C is a unit circle. C कौन है? यूनिट सर्कल है. इन z प्लेन ऐसा दिया रहेगा उन्होंने, वो तो है. अब यूनिट सर्कल क्या है बच्चों? देखो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ पहले. ओके, अब ये यूनिट सर्कल है मतलब इसकी रेडियस 1 है. इसकी रेडियस 1 है. सेंटर नहीं दिया तो हमको चॉइस है, हम लोग सेंटर 0 0 लेते. क्यों लफड़ा करने का? रेडियस इक्वल टू 1. अंडरस्टूड? ये वो सर्कल है. अंडरस्टूड? और सर्कल के लिए थीटा यहाँ 0 है, एक्स एक्सिस है, थीटा 0 और पूरा सर्कल माने थीटा इक्वल टू 2 पाई. 0 to 2 पाई इज अ कंप्लीट सर्कल. 0 पाई 2 पाई इस सर्कल है. ओके, तो पुट z equal to r e raised to I theta, but it is a
यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब r इज 1, तो z क्या हो जाएगा, r1 पुट किया तो e रेज टू i थीटा। व्हाट इज d ऑफ z? d ऑफ e रेज टू i थीटा। व्हाट इज d ऑफ e रेज टू i थीटा? e raised to I theta into d of I theta. That is e raised to I theta. d of I theta I common into d of theta. So आपको dz कितना आएगा बच्चों? dz I e raised to I theta d theta. ये अब तक आपको पता चला होगा. Okay? For unit circle, z varies या changes कहाँ से क्या हो रहा है? z varies from 0 to 2 pi. So इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे 0 to 2 pi. अब इस इंटीग्रेशन को हम I बुलाते हैं. I इक्वल टू इंटीग्रेशन log z dz. That is same as theta equal to 0 to theta equal to 2 pi log what is z? z को हमने क्या assume किया है? z है e raised to I theta into dz. What is dz? ये dz देखो I e raised to I theta into d theta. अब बच्चों आपको पता होगा log of a raised to m is Tapri rule m log a. Log of a raised to m is m log a. उसी प्रकार से होगा इंटीग्रेशन 0 to 2 pi log of e raised to I theta is I theta into log e. समझे? log of e raised to m is m log e into I into e raised to I theta into d theta. ये रूल हमने आपको log का रूल बताया. ओके, इसके लिए ये रूल है. तो बट log e is 1. ये log e नालायक कितना है? 1 है. So that I becomes equal to I common integration 0 to 2 pi theta log e is 1 और एक I है. तो ये I into I क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिखता हूँ उसको I स्क्वायर. आप समझ में आ रहा है क्या? कॉमन लेंगे उसको. ये देखो ये I और ये I का क्या होगा? स्क्वायर कॉमन आएगा. इंटीग्रेशन 0 to 2 pi होगा. हाँ थीटा आएगा, log e 1 आएगा इंटू ये क्या आएगा? e raised to I theta into d theta. But what is I square? I square हो तो -1. So I हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 pi थीटा into e raised to I theta into d theta. अरे बाप रे, ये तो u into v रूल है. इंटीग्रेशन का u into v. आपको पता है कि u into v रूल हमने लैप्लास में भी देखा है. ओके, थीटा यानी x है और e raised to x. ऐसे इंटीग्रेशन x into e raised to x है ना, उसी प्रकार से थीटा into e raised to थीटा. तो थीटा अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है. और हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? एल आई ए टी ई. ये ऑर्डर से हम करते हैं. अंडरस्टूड? तो हमारा ऑर्डर में ए पहले और बाद में ई होना चाहिए. लिएट ये ए ही है, तो उसको कैसे लिएट करेंगे? देखो जरा देखो आई इक्वल टू माइनस ऑफ. देखो पहले थीटा कॉमन वैसे है, देखो बराबर. पहला थीटा वैसे है कॉपी करने का और इंटीग्रेशन लेने का ई रेज़ टू आई थीटा का. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू आई थीटा? e raised to I theta divided by I. वो जो इंटीग्रेशन है तो डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई करते हैं. कैसा है उसका रूल देखो, u इंटीग्रेशन v थीटा वैसे कॉमन e raised to I theta का इंटीग्रेशन e raised to I theta अपन कोएफिशिएंट लेगा माइनस इस थीटा को हानो डेरिवेटिव से. थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या है? 1. आगे ये काले का पूरा इंटीग्रेशन e raised to I theta था, e raised to I theta अपॉन I. ये I और I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर. उसके बाद प्लस इसके डेरिवेटिव लेते रहो. ये 1 का डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 0. मतलब ये स्टोरी खत्म हो गई. कहां से कहां? 0 to 2 pi. देखो क्या है? माइनस ऑफ थीटा e रेज़ टू I थीटा. अब I का स्क्वायर है -1. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा e रेज़ टू I थीटा. समझ में आया क्या? ये माइनस और I का स्क्वायर है ना, I स्क्वायर होगा -1. ओके, तो ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 0 to 2 pi. इसमें मैं और एक गम्मत करता हूँ, e raised to I theta कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? e raised to I theta कॉमन आया तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा थीटा प्लस 1. कहाँ से कहाँ भैया? इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ है? हाँ 0 to 2 pi है. इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है? हाँ इसकी लिमिट है
0 to 2 पाई, बरोबर, यानी थीटा पहले 2 पाई लिखो, बाद में 0। चलो तो I इज इक्वल टू माइनस बाहर ही रखो, मैं पहले थीटा को 2 पाई रखता हूँ, अपर लिमिट 2 पाई लिखता हूँ, तो e रेस टू I इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई प्लस 1, अंडरस्टूड। यानी पहले मैं क्या किया, पहले थीटा को 2 पाई लिखा, माइनस बाहर ही है, e रेस टू I इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई प्लस 1, माइनस अंदर बाहर पता न चले, ब्रैकेट के बाहर को अंदर गड़बड़ है सब। अब थीटा को 0 लिखो, e रेस टू I इंटू 0 इंटू 0 प्लस 1, अंडरस्टूड। और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ मैंने खत्म किया, समझ आया क्या, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, माइनस बाहर ही है, उपचुप। अच्छा e रेस टू I इंटू 2 पाई क्या है, e रेस टू I थीटा का असतं cos थीटा प्लस I sin थीटा, so what is e raised to I into 2 pi, ये होगा cos 2 pi प्लस I into sin 2 pi, दिखाई दे रहा है क्या, शायद वो ट्यूबलाइट के प्रकाश में चला जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, तो उसको मैं नीचे करना पड़ेगा मुझे, e raised to I into 2 pi। यहाँ पर मैं लिखता हूँ e raised to I into 2 pi होगा cos 2 pi प्लस I sin 2 pi, cos 2 pi is minus 1 raised to 2, sin 2 pi 0, यानी आंसर आएगा प्लस 1, बराबर। और दूसरा कौन है, e raised to I into 0 है, that is equal to e raised to anything into 0 is 0, और e raised to 0 क्या है 1, तो वो I हो जाएगा माइनस ऑफ, अंदर देखो e raised to I into 2 pi कौन है, 1 है, into 2 pi प्लस 1 है, बराबर, माइनस ये कौन है, e raised to I into 0 कौन है, ये भी 1 है, into 0 प्लस 1 कौन है, 1 है। इस प्रकार से काम आ गया, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये होगा 2 पाई प्लस 1 माइनस 1, तो आंसर कैंसिल होगा, सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई, ओके। इस प्रकार से काम आएगा, अंडरस्टूड। हमारे कुछ आई का गड़बड़ तो नहीं हो गया, आई कहाँ मिस हो गया क्या मेरा इसमें, तो वो जरा देखो आई का कुछ गड़बड़ है क्या। इधर थोड़ा मेरा स्मॉल में भूल गया, देखो यहाँ पे लिखने को थीटा ई रेस टू आई थीटा, अपन ये आई में भूल गया, सॉरी, ये अपॉन आई है, समझे क्या, तो ये माइनस ई रेस टू आई थीटा कॉमन लिया, तो थीटा प्लस थीटा बाय आई प्लस 1 है, समझे क्या, ये थोड़ा मैं भूल गया थीटा बाय आई, तो इसलिए ऊपर जाके थोड़ा मैं ये गड़बड़ हो सकता है, ओके। ये मुझे फिर एक बार करना पड़ेगा, टाइम है हमारे बहुत अच्छा हो गया, तो ये थोड़ा सा जगह कम पड़ सकती है, अंडरस्टूड। यहाँ पे ये है जो है गड़बड़ है, तो ये थीटा अपॉन आई प्लस 1, अंडरस्टूड। ये 1 अपॉन आई ना, ये मैं उसको ये करता हूँ, दैट आई इक्वल टू माइनस ई रेस टू आई थीटा, माइनस ई रेस टू आई थीटा इनटू थीटा बाय आई प्लस 1, प्लस ये अभी ये डिवाइड बाय का थोड़ा गड़बड़, में आपको बता दूं क्या होता है, उसको थोड़ा हमको ये करना पड़ेगा। ये 1 अपॉन आई है ना, उसको 1 अपॉन आई को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई करूँगा ना, ये हो जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर होगा, ये होगा आई अपॉन माइनस 1 आई स्क्वायर, यानी माइनस आई, ये रूल बन गया। 1 अपॉन आई जो है ना वो होता है माइनस आई, थोड़ी जगह मुझे लगेगी, तो इधर मैं क्या करूँगा, आई इंटू आई माइनस ई रेस टू आई थीटा, थीटा अपॉन आई, समझे, तो थीटा इंटू 1 अपॉन आई है प्लस 1 है, बराबर, थीटा अपॉन आई ये ऐसा है, माइनस ई रेस टू आई थीटा इंटू 1 बाय आई कौन है, माइनस आई है प्लस 1 है, तो आई है माइनस ई रेस टू आई थीटा इंटू माइनस आई थीटा प्लस 1 है, अंडरस्टूड। ये थोड़ा गड़बड़ है, तो माइनस अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ई रेस टू आई थीटा इंटू आई थीटा माइनस 1, अंडरस्टूड। ये आई हो जाएगा, माइनस अंदर गया तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, अंडरस्टूड। इस प्रकार से ये काम होगा, मुझे थोड़ी जगह लगेगी यहाँ पे, ओके। और इसको लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ है, 0 to 2 पाई, ओके। पूरे इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, 0 to 2 पाई, समझ में आओ, ओके। अभी उसको मुझे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, 2 मिनट दो मुझे क्लियर कर देगा, ओके। सो ये 1 अपॉन आई को माइनस आई डायरेक्ट मालूम होता तो हमारा काम बच जाता। सो हमारा आई क्या होगा, देखो आई इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा इंटू
आई थीटा माइनस 1 कहाँ से कहाँ 0 to 2 पाई। तो बच्चों थीटा की लिमिट्स है 0 to 2 पाई। चलो पहले मैं थीटा को 2 पाई लिखता हूँ तो क्या होगा रे ई रेस टू आई इंटू 2 पाई आई इंटू 2 पाई माइनस 1 ये पूरा अपर लिमिट हो गया माइनस चलो थीटा को 0 लिखो ई रेस टू आई इंटू 0 यानी 0 आई इंटू 0 यानी 0 माइनस 1 समझ में आया क्या। जब मैं थीटा को 0 लिखूंगा ना तो ई रेस टू 0 हो जाएगा इंटू थीटा 0 मतलब 0 माइनस 1। अभी ई रेस टू आई इंटू 2 पाई कौन है मैं बताता हूँ। ई रेस टू आई इंटू 2 पाई होता है cos 2 पाई प्लस आई इंटू साइन 2 पाई। cos 2 पाई होता है cos n पाई माइनस 1 रेस टू n cos 2 पाई माइनस 1 रेस टू 2 साइन 2 पाई होता है 0 माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1। तो ये आंसर क्या आता है 1। सो i इज इक्वल टू ई रेस टू आई इंटू 2 पाई है 1 ये हो जाएगा 2 पाई i बराबर 2 पाई i माइनस 1 माइनस ई रेस टू 0 इज 1 0 minus 1 is minus 1. Now what is I equal to 1 into 2 pi I minus 1 is 2 pi I minus 1 बराबर 1 को कोई भी मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज आएगा 2 pi minus 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 ये कैंसिल होगा I का आंसर आएगा 2 pi I ये करेक्ट आंसर है। अंडरस्टूड प्लीज केयरफुली। cos n pi का हमने बहुत जगह फोरियर में भी लिखा है cos n pi का रूल है माइनस 1 रेस टू n cos 2 पाई होगा माइनस 1 रेस टू 2 यानी प्लस 1 cos पाई होगा माइनस 1 रेस टू 1 यानी माइनस 1 cos 3 पाई होगा माइनस 1 रेस टू 3 यानी माइनस 1 एंड सो ऑन। ये cos n पाई का एक रूल है आप ध्यान देखो या फिर कैलसी से cos 2 पाई यानी cos 360 को 1 ही आंसर मिलेगा। ये मैंने ऐसा आपको एक फॉर्मूला बता दिया cos n पाई बीच में ओके कैलसी से भी मिलेगा ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर आल्सो यू हैव टू इंटीग्रेट z स्क्वायर माइनस z वेयर c इज अपर हाफ। ये देखो आधे अधूरे ये प्रॉब्लम्स होते मतलब इसमें जो सर्कल पूरा नहीं है आधा ही सर्कल है तो ये सर्कल है यूनिट सर्कल बोला जाता है उसको ओके हम लोग उसको अच्छे से करते हैं यूनिट सर्कल ओके जिसका रेडियस r इक्वल टू 1 सो उसको क्या लेट z इक्वल टू r e रेस टू i थीटा बट r इज 1 एज इट इज अ यूनिट सर्कल। सो z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू r इज 1 इंटू e रेस टू i थीटा z इक्वल टू e रेस टू i थीटा एंड थीटा चेंजेस फ्रॉम theta varies from 0 to pi because units theta equal to 0 theta equal to pi हाँ अपर हाफ ऑफ यूनिट सर्कल है और अपर हाफ है इसलिए उसको मैंने क्या किया है 0 to pi रखा हाफ ही हो। उसके बाद नाउ z is e raised to i theta से मुझे देगा dz is d e raised to i theta ये सब रिपीटेटिव है डेरिवेटिव of e raised to i theta is same e raised to I theta into derivative of I theta that is e raised to I theta into derivative of I theta I constant into derivative of theta so dz मुझे मिल गया dz क्या मिल गया I e raised to I theta into d theta ये dz मुझे मिल गया अंडरस्टूड। ये देखिए और z थीटा की लिमिट भी है 0 to pi उसके बाद z स्क्वायर एंड ऑल उस इंटीग्रेशन को I अगर हम नाम देंगे तो हमारा I होगा इंटीग्रेशन 0 to pi। अब ये z का स्क्वायर z कौन है e रेस टू i थीटा उसका स्क्वायर माइनस खुद z यानी e रेस टू i थीटा बराबर इतना ही है इनटू dz कौन है dz है i e रेस टू i थीटा इनटू d थीटा। अंडरस्टूड। इस प्रकार का ये प्रॉब्लम है। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा i कॉमन देना पड़ेगा और e रेज़ टू i थीटा से मल्टीप्लाई तो i इनटू इंटीग्रेशन 0 टू pi। अब e रेज़ टू i थीटा का स्क्वायर क्या है e रेज़ टू 2 इनटू i थीटा e रेज़ टू 2 i थीटा होगा माइनस e रेज़ टू i थीटा होगा इनटू ये होगा e रेज़ टू i थीटा इनटू d थीटा ये i कॉमन हो गया। अब e रेज़ टू i थीटा से दोनों को अंदर मल्टीप्लाई तो ये होगा 0 टू pi
e raised to 2 I theta into e raised to I theta minus e raised to I theta into e raised to I theta into d theta. That is I into 0 to pi. Now common base common numerator अबे तो पावर ऐड करो e raised to 2 I theta plus I theta. e base सेम तो मल्टीप्लाई म्हणजे इंडायसेस ऐड करो 2 I theta plus I theta क्या होगा अच्छा 3 I theta. e raised to I theta plus I theta 2 I theta और d थीटा. ओके तो I दोनों को इंटीग्रेशन दीजिए. इंटीग्रेशन e रेज टू 3i थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू 2i थीटा d थीटा और कहां से कहां 0 टू पाई दैट इज इक्वल टू I इनटू नाउ इंटीग्रेशन e रेज टू 3i थीटा e रेज टू 3i थीटा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ थीटा कौन है 3i माइनस ये कौन है e रेज टू 2i थीटा और कोएफिशिएंट ऑफ थीटा कौन है बेटा 2i कहां से कहां 0 टू पाई. अंडरस्टूड. अगर ये i को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये i और नीचे का कैंसिल होगा. अंडरस्टूड और नॉट. या उसको बाद में करेंगे तो भी चलेगा लेकिन चलो अंदर करो तो क्या होगा या चलो नीचे से ये i कॉमन दीजिए. मैं थोड़ा e रेज टू 3i थीटा अपॉन 3 माइनस e रेज टू 2i थीटा अपॉन 2 कहां से कहां 0 टू पाई. मैं क्या किया या i को कैरी करना ना अपर लिमिट कट है मस्त कैंसिल हो रहा है ना तो नीचे से i कॉमन लिया ये 3 बचा ये 2 बचा ये कैंसिल. अब ये सब में थीटा को अपर लिमिट पाई पुट करो. so e रेज़ टू 3i into पाई बाय 3 माइनस e रेज़ टू 2i into पाई बाय 2. अंडरस्टूड. पहले ये थीटा की जगह पाई पुट किया माइनस अब थीटा की जगह 0 पुट करो पूरे में पहले के दोनों में थीटा को पाई पुट किया माइनस थीटा को 0 e रेज़ टू 0 into anything 0 by 3 minus e raised to 0 by 2. अब ये देखो e raised to 3i pi तो इसको ना बाजू में लेके सॉल्व करूंगा. e raised to 3 into i pi का मतलब e raised to I into 3 pi बराबर. e raised to I थीटा का फॉर्मूला क्या है cos थीटा plus I sin थीटा. अंडरस्टूड. e raised to I pi is cos 3 pi plus I sin 3 pi. अब भी मैंने बोला cos 3 pi कौन -1 रेज़ टू 3 साइन वाला 0 तो अंडरस्टूड -1 का क्यूब कौन आएगा -1. अंडरस्टूड. या इधर लिखूंगा ये -1 तो ये काम हो गया e रेज़ टू 3i pi. अब पूछो क्या है e रेज़ टू 2i pi. e रेज़ टू 2i pi का मतलब e रेज़ टू I into 2 pi और e रेज़ टू I into थीटा cos थीटा cos 2 pi plus I into sin 2 pi. कैलसी में भी मिल जाएगा पाई को मल्टीप्लाई करेंगे. cos 2 pi है -1 रेज़ टू 2 sin 2 pi है 0 आंसर +1. दोनों के आंसर आ गए. एंड e रेज़ टू 0 इन एनी केस एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या आता है 1. ये सब कचरा अगर मैं i में पुट करूं घर i में तो हमारा i हो जाएगा e रेज़ टू 3 into i pi क्या है बोलो e रेज़ टू 3 into i pi ये -1/3 माइनस e रेज़ टू I into 2 pi कौन है ये है e रेज़ टू I into 2 pi 1/2. ओके माइनस e रेज़ टू 0 1/3 माइनस e रेज़ टू 0 1/2. एक्सपांड ये क्या होगा -1/3 होगा -1/2 होगा माइनस प्लस -1/3 होगा माइनस माइनस प्लस 1/2 ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा रे -1/3 -1/3 क्या हो जाएगा रे 3 कॉमन -1 यानी क्या हो जाएगा रे -2/3. आंसर क्या हो जाएगा -2/3. अंडरस्टूड. प्लीज टेक डाउन. ओके प्लीज कंप्लीट. अब अगर आपको z² माइनस z की जगह z माइनस z² दिया तो सब आंसर सेम होगा खाली माइनस माइनस प्लस 2/3 आएगा. अंडरस्टूड. अगर बुक में उसको z माइनस z² दिए आप सॉल्व करो. ओके उसको अगर उल्टा लिखा z माइनस z² तो आंसर खाली माइनस का प्लस होगा. ओके इजीली कैलकुलेट. हमारा सर्कल यानी सेमी सर्कल वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई बच्चों. अंडरस्टूड. अब हम कोशी के पीछे जाएंगे.